Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Common Task in PowerPoint. In this chapter, you will learn about PowerPoint animations, inserting video, inserting audio, managing slides, presenting slideshow, and rehearsing and recording your presentation. A presentation software allows you to create presentations by using text, pictures, audio, video, sound, animation, and graphics with a number of special effects. You're already aware of the basic features of PowerPoint. In this chapter, you will learn how to apply an animation and slide transition to the slides. देखिए आपका जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको अलाउ करता है कि आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियोस का यूज़ करते हुए, और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स भी होते हैं. तो वैसे तो बेसिक फीचर आपको पावर पॉइंट के बारे में पता है, बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन को अप्लाई किया जाता है स्लाइड्स में. ओके, पावर पॉइंट एनिमेशंस. Animations are visual effects given to individual objects on a slide or to the slide as a whole. This tool of PowerPoint application is very powerful and effective for attracting the audience's attention. There are two types of animation effects in PowerPoint. Number one, slide transition, and number two, custom animation. Okay, so हमारे पास दो तरह के animation effects हैं. Okay, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. Number one is slide transition. A transition can be as simple as fading to the next slide or as flashy as an eye-catching effect. PowerPoint makes it easy to apply transition to some or all of your slides, giving your presentation a polished and professional look. There are three categories of unique transitions to choose from, all of which can be found on the transition tab. Subtle. These are the most basic type of transition. They use simple animations to move between slides. Next, exciting. These use more complex animations to transition between slides. While they are more visually interesting than subtle transitions, adding too many can make your presentation look less professional. Dynamic content. If you are transitioning between two slides that use similar slide layouts, dynamic transitions will move only the placeholders, not the slides themselves. When used correctly, dynamic transitions can help unify your slides and add a further level of polish to your presentation. Transitions are best used in moderation. Adding too many transitions can make your presentation look a little silly and can even be distracting to your audience. Consider using mostly subtle transitions or not using transitions at all. Okay, अब देखिए स्लाइड ट्रांजिशन क्या है आपका. इसमें इसकी हेल्प से देखिए आपकी जो स्लाइड्स हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लुक उनको मिल सकता है. ओके, आपकी स्लाइड्स, आपकी जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी आपकी पॉलिश्ड लग सकती हैं. तो उसमें भी आपकी थ्री कैटेगरीज हैं. उनमें है नंबर वन, सटल. ये बहुत ही बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन होते हैं और ये सिंपल एनिमेशंस को यूज़ करते हैं जो मूव करते हैं बिटवीन स्लाइड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एक्साइटिंग. इसमें आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो जाता है. ये विजुअली तो इंटरेस्टिंग लगते हैं कंपैरेटिवली सटल ट्रांजिशन के, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया तो फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल थोड़ी सी कम लगेगी. ओके, एंड डायनामिक कंटेंट. अगर आपकी ट्रांजिशनिंग है दो स्लाइड्स के बीच में जो कि सिमिलर स्लाइड लेआउट्स यूज़ कर रहे हैं, तो डायनामिक ट्रांजिशन जो है वो मूव करेगी ओनली द प्लेस होल्डर्स, नॉट द स्लाइड देमसेल्व्स. ओके, तो जब करेक्टली इसको यूज़ किया जाता है तो डायनामिक ट्रांजिशन आपकी स्लाइड्स को यूनिफाई कर सकती है और एक फर्दर लेवल जो है ऑफ पॉलिश वो ऐड ऑन कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में. ओके, ट्रांजिशंस आपकी हमेशा अगर मॉडरेशन में आपने यूज़ की है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस ऐड कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी सिली दिखती है और इवन आपके ऑडियंस को भी वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग लगती है. सो इसीलिए या तो आप सटल ट्रांजिशंस यूज़ करें या फिर ट्रांजिशंस यूज़ ही ना करें. ओके, अप्लाइंग अ ट्रांजिशन. टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, फॉलो दीज स्टेप्स. Number one, select the desired slide from the slide navigation pane. Step 2, click the transition tab, then locate the transition to the slide group. By default, none is applied to each slide. Number 3, click the more drop down arrow to display all transitions. Step 4, click a transition to apply to the selected cell. This will automatically preview the transition. Number 5, you can use apply to all command in the timing group to apply the same transition to all your slides in your presentation. Keep in mind that this will modify any other transitions you have applied. Try to apply a few different types of transition to various slides in your presentation. You may find that some transitions work better than others depending on the content of your slides. अब देखिए transitions हमें apply करनी है. Okay, so कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे. ओके, ये स्लाइड नेविगेशन पेन से
अब देखिए हम क्लिक करेंगे ट्रांजिशन टैब को, डिफ़ॉल्ट नन जो है आपके अप्लाई हो गई है। अब देखिए हमने इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, अब आपके पास देखिए और सारी ट्रांजिशन आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, अब इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूज अप्लाई टू ऑल कमांड। ओके, तो सेम ट्रांजिशन आपकी सारी स्लाइड्स में आपकी अप्लाई हो जाएंगे। ओके, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्लाइड्स में अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस ऐड ऑन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा कुछ स्लाइड्स जो ट्रांजिशंस है वो दूसरे से बेटर वर्क करती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है आपकी स्लाइड्स का। ओके, क्लीन अप में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। ओके, मॉडिफाइंग अ ट्रांजिशन इफेक्ट, अब आपको ट्रांजिशन इफेक्ट मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे? द ट्रांजिशन टैब अलाउज यू टू मॉडिफाई ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज इन मेनी वेज। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आपका आता है इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट shows the direction of the transition and tool used effect options on the transition to this slide group. Sound adds a sound with the transition and tool used timing group of transitions tab. Duration indicates the time taken by the transition to complete timing group of transitions tab. Apply to all applies the selected transition effect to all the slides. Timing group of transitions tab. Advanced slide, the action that lets the presentation move to the next slide. Choose from on mouse click or after number of seconds options on the timing group of transition step. देखिए आपके पास सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आता है इफेक्ट ऑप्शन। इसका इफेक्ट क्या है कि ये जो ट्रांजिशन है उसके डायरेक्शन को शो करेगा, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? इफेक्ट ऑप्शन, जो आपका ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में। नेक्स्ट है आपके पास साउंड, ये साउंड ऐड करेगा आपके ट्रांजिशन में, और ये आपको मिलेगा ट्रांजिशन टैब में टाइमिंग में। ओके, नेक्स्ट ड्यूरेशन, ये इंडिकेट करता है टाइम जो ट्रांजिशन लिया है कंप्लीट करने के लिए, और ये आपको मिलेगा अगेन टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन टाइम। ओके, नेक्स्ट अप्लाई टू ऑल, ये क्या करता है? जो सिलेक्टेड ट्रांजिशन इफेक्ट है उसको अप्लाई कर देता है ऑल द स्लाइड्स में, और ये भी आपको मिलेगा टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन टैब में। नेक्स्ट है आपका एडवांस स्लाइड, और इससे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाती है। ओके, और इसमें कौन सा टूल यूज़ किया गया? आप माउस क्लिक से भी कर सकते हैं, या फिर आफ्टर ऑप्शंस जो आपके टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन टैब्स में। ओके, प्रीव्यूइंग अ ट्रांजिशन, यू कैन प्रीव्यू द ट्रांजिशन फॉर अ selected slide at any time using either of these 2 methods. Number 1, click the preview command on the transition tabs. Number 2, click the play animations command in the slide navigation pane. ओके, आप अपनी ट्रांजिशन को प्रीव्यू कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड स्लाइड के लिए। इसके लिए आपके 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो देखिए ट्रांजिशन टैब में आपके पास आता है प्रीव्यू कमांड, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, या फिर आप क्लिक करेंगे प्ले एनिमेशन कमांड में, जो आपके स्लाइड नेविगेशन पेन पे होगा। जस्ट फॉर information, to remove transition from all slides, select a slide that uses none and click the apply to all command. ओके, अगर आप चाहते हैं कि सारी ही स्लाइड से आपकी ट्रांजिशन रिमूव हो जाए तो आपने एक स्लाइड को सिलेक्ट करना है। ओके, दैट यूजेस नन, और उसके बाद आपने क्लिक करना है अप्लाई टू ऑल कमांड। नंबर 2, custom animation. In PowerPoint, you can animate text and objects such as clip art, shapes and pictures. Animation or movement on the slide can be used to draw the audience attention to specific content or to make the slide easier to read. PowerPoint offers a variety of animations you can use to enhance your presentation. Animations can be used to make text or objects appear on a slide, exit a slide, or emphasize the text or objects already on a slide. You can even use motion paths to create a customized animation. There are many different animation effects that you can choose from, and they are organized into 4 types. Okay, PowerPoint में आप text या object को animate कर सकते हैं, जैसे आपके पास clip art है, shapes and pictures है। Okay, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऑडियंस का अटेंशन है उसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे, या फिर आप अपनी स्लाइड को मतलब रीड करने के लिए मतलब वो इजी हो जाए। ठीक है, तो एनिमेशन की हेल्प से वो हो सकता है। वैरायटी ऑफ एनिमेशंस आपको पावर पॉइंट में मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन को आप एनहांस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को स्लाइड पे अपीयर हो जाए, या एग्जिट अ स्लाइड, या एम्फसाइज द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी आपकी स्लाइड पे हैं। तो हमारे पास ना डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, तो 4 तरह के हैं बेसिकली। सो नंबर 1 इज एंट्रेंस. These control how the object enters the slide. For example, with a bounce animation, the
object will fall onto the slide and then bounce several times. Number 2, emphasis. These animations occur while the object is on the slide, often triggered by a mouse click. For example, you can set an object to spin when you click the mouse. अच्छा देखिए, एंट्रेंस में क्या होगा, ये कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो एंटर करता है स्लाइड में. जैसे कि आपका विद द बाउंस एनिमेशन के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड पे फॉल करेगा और बहुत बार वो फिर वो बाउंस आपका होगा. एंड एम्फेसिस में ये आपके होते हैं, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड पे होगा एंड इसको दे आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय माउस क्लिक. जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं स्पिन करने के लिए जब आप माउस को क्लिक करेंगे. ओके, next is exit. These control how the object exits the slide. For example, with a fade animation, the object will simply fade away. अब आपके पास क्या है, ये कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड से एग्जिट करे. जैसे कि फेड एनिमेशन है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सिंपली इट विल फेड अवे, right? And the next one is motion pass. These are similar to emphasis effects except the object moves within the slide along a predetermined path like a circle. अब ये भी emphasis effect की तरह ही होते हैं, similar, बट इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड में मूव करेगा, एक प्री डिटरमिन्ड पाथ होगा उसमें, लाइक अ सर्कल. ओके, अप्लाइंग एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट. टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, फॉलो दीज स्टेप. Number 1, select an object. Number 2, click the animation step. Number 3, in the animation group, click the more drop-down arrow to view the available animations. Number 4, select the desired animation effect. And number 5, the object will now have a small number next to it, show that it has animation. Also in the slide pane, the slide will now have a star symbol next to it. Okay, आपको एनिमेशन अप्लाई करनी है ऑब्जेक्ट में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे. ओके, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट. ओके, नाउ एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे. अच्छा देखिए, अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, कौन कौन से एनिमेशंस हैं, इनमें से जो भी एनिमेशन इफेक्ट चाहिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे. ओके ओके, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास अब नंबर ऑफ छोटे छोटे नंबर है नेक्स्ट टू इट. ओके, जो कि एनिमेशन शो कर रहे हैं. ओके, और स्लाइड पेन में भी देखिए जो स्लाइड में स्टार सिंबल आ गया है नेक्स्ट टू इट, है ना. Previewing animations. Any animation effects you have applied will show up when you play the slideshow. However, you can also quickly preview the animations for the current slide without viewing the slideshow. To preview an animation, follow these steps. Step 1. Navigate the slide you want to preview. Step 2. From the animations tab, click the preview command. The animations for the current slide will play. अच्छा देखिए, कोई भी एनिमेशन इफेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं. आप जो आपने अप्लाई किए उसे आप देख सकते हैं जब आप स्लाइड शो प्ले करेंगे. ओके, हालांकि आप क्विकली प्रीव्यू कर सकते हैं एनिमेशन को करंट स्लाइड के लिए बिना स्लाइड शो व्यू किए हुए. कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम नेविगेट करेंगे स्लाइड को जिसका हमें प्रीव्यू देखना है. ओके, आप देखिए यहाँ पे एनिमेशन टैब पे प्रीव्यू कमांड को हम क्लिक करेंगे. अब देखिए एनिमेशन जिसको हमने सिलेक्ट किया स्लाइड को वो प्ले हो रहा है, राइट. इंसर्टिंग अ वीडियो. PowerPoint allows you to insert a video directly into your presentation. You can even edit the video within PowerPoint and customize its appearance with a video style. Adding video to your presentation can help emphasize certain points and provide an example. To insert a video from a file on your computer, follow these steps. Step 1. From the Insert tab, click the video drop-down arrow and select Video on my PC. Step 2. Locate and select the desired video file, then click Insert. Number 3. The video will be added to the slide. ओके अच्छा, अब देखिए हमको वीडियो इंसर्ट करना है. हम डायरेक्टली जो वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, और इवन हम पावर पॉइंट के अंदर उसको एडिट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसका अपीयरेंस. ओके, तो देखिए किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे वीडियो को. सबसे पहले इंसर्ट टैब में ये क्लिक करेंगे हम वीडियो ड्रॉप डाउन एरो. ओके, और फिर सिलेक्ट करेंगे वीडियो ऑन माई पीसी. ओके, नाउ अब कोई भी जो वीडियो फाइल है हम इसे सिलेक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं, फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट. ओके, अब देखिए वीडियो हमारे स्लाइड के साथ ऐड हो गई है ना. नेक्स्ट, इंसर्टिंग ऑडियो. PowerPoint allows you to add sound to your presentation, which opens up a lot of possibilities. To insert audio from a file on a computer, follow these steps. Step 1. From the Insert tab, click the Audio drop-down arrow and select Audio on my PC. Step 2. Locate and select the desired audio file, then click Insert.
स्टेप 3, द ऑडियो विल बी एडेड टू द स्लाइड। ओके, अब देखिए हमने वीडियो ऐड कर लिया तो ऑडियो भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं साउंड को, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप जाएंगे इंसर्ट टैब में और क्लिक करेंगे ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो और इसमें से सिलेक्ट करना है ऑडियो ऑन माई पीसी। फिर देखिए जो भी ऑडियो फाइल हमें चाहिए उसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड ऑडियो फाइल जो है हमारी स्लाइड के साथ ऐड हो गई है। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऐड नोट्स टू योर स्लाइड्स द नोट्स पेन। आप अपनी स्लाइड्स में नोट्स ऐड कर सकते हैं नोट्स पेन से। मैनेजिंग स्लाइड्स, as you add more slides to a presentation, it can be difficult to keep everything organized. Fortunately, PowerPoint offers tools to help you organize and prepare your slideshow. Okay. अच्छा देखिए, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में ज़्यादा स्लाइड्स ऐड ऑन करते हैं तो सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट पावरपॉइंट में आपके पास ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपके स्लाइड शो को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, About slide views. PowerPoint include several different slide views which are all useful for various tasks. The slide view commands are located in the bottom right of the PowerPoint window. There are 4 main slide views. अच्छा, आपके पास 4 मेन स्लाइड व्यूज हैं जिसमें नंबर 1 है नॉर्मल व्यू। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। यू कैन ऑल्सो मूव स्लाइड्स इन द स्लाइड नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट। ये डिफ़ॉल्ट व्यू है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन में लेफ्ट पे। ओके, नंबर 2, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन दिस व्यू यू विल सी अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप स्लाइड्स टू ऑर्डर देम क्विकली। इस व्यू में आपको ना थंबनेल वर्जन दिखता है आपकी हर स्लाइड का, तो आप उसको ड्रैग करेंगे और स्लाइड को ड्रॉप करेंगे उनको रीऑर्डर करने के लिए। ओके, नंबर 3, रीडिंग व्यू। This view fills the PowerPoint window with a preview of your presentation. It includes easily accessible navigation buttons at the bottom right. ये जो है, ये व्यू जो है PowerPoint विंडो को फिल करता है एक प्रीव्यू के साथ ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ओके, इसमें easily accessible navigation buttons होते हैं आपके बॉटम राइट में। And number 4, slide show view. This is the view you will use to present to an audience. This command will begin the presentation from the current slide. You can also press F5 on your keyboard to start from the beginning. A menu will appear in the bottom left corner when you move the mouse. These commands allow you to navigate through the slides and access other features such as the pen and highlighter. Okay, अब ये जो view है इसको आप use करते हैं प्रेजेंट करने के लिए अपनी ऑडियंस को। ओके, ये आपकी प्रेजेंटेशन को, ये जो कमांड है ना, ये आपकी प्रेजेंटेशन को बिगिन करेगा करंट स्लाइड से। और वैसे आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, जो कि बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। ओके, इसके बाद मेन्यू अपीयर होता है आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पे आप उसके बाद आप जैसे आप माउस को मूव करते हैं, ये कमांड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप नेविगेट कर सकें थ्रू स्लाइड्स और दूसरे फीचर्स को एक्सेस कर सकें, जैसे कि पेन है या फिर हाईलाइटर है, राइट। Just for your information, a custom slideshow displays only the slides you select. Custom slideshow में सिर्फ वही डिस्प्ले करेगा जिन स्लाइड्स को आपने सिलेक्ट किया। ओके, ओके चिल्ड्रन, क्लीन अप में 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है, इनके आंसर आप खुद से करेंगे, राइट। Just for your information, outline view shows your slide text in an outline form. This allows you to quickly edit your slide text and view the content of multiple slides at once. आउटलाइन व्यू क्या शो करता है, आपके स्लाइड टेक्स्ट को एक आउटलाइन की फॉर्म में। ओके, तो इससे आप अपनी स्लाइड टेक्स्ट को क्विकली एडिट कर सकते हैं। ओके, और आप व्यू कर सकते हैं मल्टीपल स्लाइड्स के कंटेंट को एक बार में। ओके, प्रेजेंटिंग स्लाइड शो। Once your slideshow is complete, you will need to learn how to present it to an audience. PowerPoint offers several tools and features to help make your presentation smooth, engaging and professional. Before you present your slideshow, you will need to think about the type of equipment that will be available for your presentation. Many presenters use projectors during presentations, so you might want to consider using one as well. This allows you to control and preview slides on one monitor while presenting them to an audience on another screen. अब एक बार आपका स्लाइड शो कंप्लीट हो गया, ओके, तो अब आप ये सीखेंगे किस तरह से आपको अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करना है। तो PowerPoint में एक्चुअली बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है आप उसको स्मूथ, एंगेजिंग और प्रोफेशनल बना सकते हैं। ओके, तो अपनी स्लाइड शो को प्रेजेंट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए किस तरह का जो इक्विपमेंट है वो आपके
प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। ओके, कुछ प्रेजेंटर्स जो है प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपको भी ज़रूरत पड़े। इससे आपका क्या होता है कि आप कर सकते हैं, इससे कंट्रोल एंड प्रीव्यू कर सकते हैं स्लाइड्स को एक मॉनिटर पे while presenting them to an audience on another screen. Okay, starting a slideshow, there are several ways you can begin your presentation. Number one, click the start from beginning command on the quick access toolbar or press the F5 key at the top of your keyboard. The presentation will appear in full screen mode. Number two, select the slideshow command at the bottom of the PowerPoint window to begin a presentation from the current slide. Number three, go to the slideshow tab on the ribbon to access even more options. From here, you can start the presentation from the current slide and access advanced presentation options. Okay. अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप F5 की को प्रेस करेंगे या फिर आप स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग को क्लिक करेंगे. ओके, सो हियर आई एम क्लिकिंग द स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, इसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम स्लाइड शो. ओके, इसके बाद हम जाएंगे स्लाइड शो टैब में. ओके, और यहाँ से फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. ओके, advancing and reversing slides. You can advance to the next slide by clicking your mouse or by pressing the space bar on your keyboard. Alternatively, you can use arrow keys on your keyboard to move forward or backward through the presentation. You can also hover your mouse over the bottom left and click the arrows to move forward or backward. Okay, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, या तो आप माउस पे क्लिक करेंगे या स्पेस बार को प्रेस करेंगे. ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एरो कीज का यूज कर सकते हैं जो आपकी कीबोर्ड में फॉरवर्ड जाने के लिए या बैकवर्ड जाने के लिए. ओके, स्टॉपिंग अ स्लाइड शो, यू कैन एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड बाय प्रेसिंग द एस्केप की ऑन योर कीबोर्ड. अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक द स्लाइड शो ऑप्शंस बटन इन द बॉटम लेफ्ट एंड सेलेक्ट एंड शो. ओके, अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन से एग्जिट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप की को प्रेस कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो ऑप्शन बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे एंड शो. राइट, तो आपकी जो स्लाइड है आपका शो स्टॉप हो जाएगा. Rehearsing and recording your presentation. There are many things to keep in mind when preparing to give a presentation. How long will it last? What will you say? Fortunately, PowerPoint offers several tools that can help you rehearse your slideshow. You can even record a copy with voice over narration, allowing viewers to watch the presentation on their own. Okay. जैसे आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, जैसे कि कितनी देर तक ये चलेगा, मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी. तो पावर पॉइंट में ना बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको आपकी स्लाइड शो को रिहर्स करने में हेल्प करते हैं. ओके, आप रिकॉर्ड कर सकते हो कॉपी को वॉइस ओवर नरेशन के साथ, जिससे कि व्यूवर्स को क्या होगा कि वो प्रेजेंटेशन को अपने आप से देख पाएंगे. Rehearsing slideshow timings. Rehearsing timings can be useful if you want to set up a presentation to play at a certain speed without having to click through the slides yourself. It also gives you the opportunity to practice your talking points. Using this feature, you can save timings for each slide and animation. PowerPoint will then play the presentation automatically using these timings. Rehearsing is often one of the last steps in creating a polished presentation. To rehearse timings, follow these steps. Step 1. Go to the slideshow tab, then click the rehearse timings command. Number 2, you will be taken to a full screen view of your presentation. Practice presenting your slideshow. When you are ready to move to the next slide, click the next button on the recording toolbar in the upper left corner. Step 3, when you reach the end of the show, a dialog box will appear with the total time of your presentation. If you are satisfied with the timings, click yes. Step 4, the timings will be saved. The next time you present, PowerPoint will use these timings to advance the slides automatically. Okay, चलिए देखते हैं. देखिए, रिहर्सिंग टाइम काफ़ी यूजफुल होता है. इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो सेटअप हो जाती है कि एक सर्टेन स्पीड पे उसको प्ले करना है. राइट, इससे क्या होगा कि आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स के जो की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, और इससे आपका टाइम भी बच जाएगा हर स्लाइड और एनिमेशन के लिए. ओके, तो देखिए हम कैसे करेंगे. सबसे पहले आप जाएंगे स्लाइड शो टैब में, देन क्लिक करेंगे यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग्स कमांड. ओके, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब देखिए फुल स्क्रीन व्यू आ गया आपकी प्रेजेंटेशन का, है ना. ओके, अब आप करेंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक. अब जैसे ही आप शो के एंड में पहुँचते हैं, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. इसमें आपका टोटल टाइम आ रहा है ना. अगर आप इससे सेटिस्फाइड अपनी टाइमिंग से, तो आप क्लिक करेंगे येस. ओके, अब टाइमिंग आपकी सेव हो जाएगी. तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ये इन टाइमिंग्स
आपको PowerPoint यूज़ करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली. Summing up, a presentation software allows you to create presentation by using text, pictures, audio, video, sound, animation, and graphics with a number of special effects. In PowerPoint, you can animate text and objects such as clip art, shapes, and pictures. Motion paths are similar to emphasis effects, except that the object moves within the slide along a predetermined path like a circle. PowerPoint includes several different slide views which are all useful for various tasks. Reading view fills the PowerPoint window with the preview of your presentation. Rehearsing timings can be useful if you want to set up a presentation to play at a certain speed without having to click through the slides yourself. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.